Hello everyone, welcome to the channel Commerce Learning Classes. Today we are going to do Guarantee to a Partner from Partnership Fundamentals. Guarantee to a partner means to give assurance to a partner that your share in profits will not be less than the guaranteed amount. जब हम किसी पार्टनर को ये एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हारा जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो गिवन अमाउंट से कम नहीं होगा, तो दैट इज द गारंटी टू अ पार्टनर. Guarantee to a partner is given for minimum share in profit. If the actual share in profit is more than the minimum share in profit, then the actual profit will be allowed to the partner. then अगर actual profit जो है वो minimum share से ज्यादा है तो हम पार्टनर को actual profit allow करते हैं. For example, A, B and C are partners in a firm and their profit sharing ratio is 3:2:1. C is guaranteed that his share of profit will not be less than 35,000 rupees. Now, firm's profit is 2,40,000. When we share the profit in the ratio of 3:2:1, then A's share will be 1,20,000. B's share will be 80,000 and C's share will be 40,000. So now his actual profit is more than the guaranteed profit. So therefore the profit C will get is rupees 40,000. उसको 40,000 रुपीज मिलेगा. लेकिन अगर जो गारंटेड पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, उसका शेयर मतलब जो मिनिमम शेयर है उससे कम है, उसका एक्चुअल शेयर जो प्रॉफिट में है वो मिनिमम शेयर से कम है, देन उसको गारंटी जो है जो प्रोवाइड की जाती है वो टू टाइप से होती है, आइदर बाय फर्म और बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर. तो अगर गारंटी फर्म ने दी है, व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, दैट मींस ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. If share in actual profit is less than the guaranteed amount, then guaranteed amount to a partner is first written off against the profit and then remaining profits are distributed among the remaining partner in the remaining ratio. कहते हैं अगर actual profit guaranteed amount से कम है तो सबसे पहले प्रॉफिट में से guaranteed amount पार्टनर को दिया जाएगा और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स में रिमेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. ये है जब फर्म जो है गारंटी देती है किसी पार्टनर को. एंड व्हेन गारंटी इज गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर, एक पार्टनर या उससे ज्यादा पार्टनर्स ने किसी और पार्टनर को गारंटी दी हो, देन कैलकुलेट द शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पार्टनर टू हुम गारंटी इज गिवन. If share in profit is more than the guaranteed amount, distribute the profit as per the profit and loss sharing ratio in usual manner. कि अगर guaranteed amount से ज्यादा है तो उसको जो amount आया है that will be given. If share in profit is less than the guaranteed amount, अगर guaranteed amount से कम है, then find the difference between the share in profit and guaranteed amount and the difference known as deficiency. और जो डिफरेंस है उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं और दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी. ओके, सो अब हम फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं. व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, A, B and C were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000 rupees. Profit for the year ended
31st March 2020 amounted to rupees 3,15,000. You are required to show the appropriation among the partners. A, B and C ये पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:1. अब इसमें C को गारंटी दी गई है कि उसका जो प्रॉफिट में शेयर है दैट विल नॉट बी लेस देन 75,000 रुपीज. अब यहाँ मेंशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने दिया है, तो वी विल कंसीडर द गारंटी इज गिवन बाय द फर्म दैट इज रिमेनिंग पार्टनर A and B. ऑन 31st March प्रॉफिट वॉज रुपीज 3,15,000. तो हम क्या करेंगे, व्हेन द गारंटी इज गिवन बाय A and B, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकी एप्रोप्रिएशन शो करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का. सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. $3,15,000 हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं एक बार कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है. A share in profit is equal to 3,15,000 4/7. ओके, 20 का शेयर इज इक्वल टू 3,15,000 इंटू 2/7. C share is equal to 3,15,000 इंटू 1/7. तो ये होगा 45,000 रुपीज. दैट विल बी 90,000 रुपीज एंड दिस इज 1,80,000. ओके, नाउ C शेयर इज 45,000 रुपीज. जो उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है प्रॉफिट में दैट इज 45,000, लेकिन उसको गारंटीड जो दी गई है वो 75,000 रुपीज की दी गई है. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि ये गारंटी जो दी गई है वो फर्म की तरफ से दी गई है, तो हम सबसे पहले जो C का गारंटेड अमाउंट है वो उसको ट्रांसफर कर देंगे. उसको राइट ऑफ करके बाकी जो अमाउंट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर में रिमेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इसका शेयर हो गया 75,000 रुपीज. ओके, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 3,15,000 माइनस 75,000 दैट इज इक्वल टू 2,40,000. तो अब 2,40,000 A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, 4:2, यानी कि 4:2, और इसको हम लिख सकते हैं 2:1 सिंप्लीफाइड मेथड में. तो A का शेयर कितना होगा, A शेयर इज इक्वल टू
2,40,000 2/3 यानी 1,60,000 और बी का शेयर होगा 2,40,000 का 1/3 that is 80,000. So this will be the share of profit of A, B and C. So this is how we distributed the amount of profit after providing guarantee to a partner. तो A और B और C में हमने 3,15,000 को डिवाइड किया. S सबसे पहले हमने 75,000 जो गारंटेड अमाउंट था वो C को दिया. उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट था यानी 3,15,000 माइनस 75,000 2,40,000 को फिर हमने A और B में रिमेनिंग रेशो दैट इज 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Okay. Next is when the guarantee is given by a partner. Okay. So question is X, Y and Z entered into a partnership on 1st July 2019 to share profit and loss in the ratio of 3:2:1. X guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than rupees 36,000 per annum. The capital contributed by X, Y and Z is rupees 2 lakh, rupees 1 lakh and 1 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2020 was 1,38,000. Prepare profit and loss appropriation account. इसमें क्या बोला है X, Y और Z पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 जुलाई 2019 को एंड क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ये इनका रेशियो है. X ने दी है गारंटी Z को कि उसका जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद would not be less than 36,000 per annum. Now इसमें भी क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये एडजस्टमेंट शो करने के लिए. सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसे हम ट्रांसफर करेंगे. प्रॉफिट इज 1,38,000. Sorry, this is X.
एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसके अब हम कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट्स में। देखो, सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट। हमारी एक्स वाई जेड की कैपिटल्स गिवन है। एक्स की है ₹2 लाख, वाई की ₹1 लाख और जेड की 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है दैट इज 6% पर एनम। अब एज जो हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है दैट इज ऑन 1 जुलाई और ईयर एंड कब है 31 मार्च। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम चार्ज करेंगे दैट विल बी फॉर 9 मंथ्स, फ्रॉम जुलाई टू मार्च। तो 2 लाख रुपीस का हम 6% कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स। इसी तरीके से y का 1 लाख रुपीस का 6% फॉर 9 मंथ्स और z का भी 1 लाख रुपीस का 6% फॉर 9 मंथ्स। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा 9,000 रुपीस, ये होगा 4,500, ये भी होगा 4,500। Okay, so this is interest on capital of X, Y and Z. तो अब हम देखते हैं, ये हो जाएगा 9,000, 4,500 एंड 4,500। तो टोटल कितना हो गया ये 18,000। अब हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना हुआ, that will be 1,38,000 minus 18,000 is equal to ₹1,20,000। तो अब इसमें से हम एक्चुअल शेयर निकालेंगे एक्स, वाई और जेड का। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा एक्स, रेशियो जो गिवन है दैट इज 3:2:1। 1,20,000 का 3/6। जेड का शेयर होगा 1,20,000 इंटू 1/6, दैट विल बी 20,000। वाई का हुआ 40,000 और जेड का हुआ 60,000। ओके, बट नाउ इन द क्वेश्चन जेड इज गारंटेड बाय एक्स, कि उसका जो प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा दैट विल नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। जेड का जो गारंटेड अमाउंट है वो होगा 36,000 पूरे साल का उनको उसको बोला गया है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो हम निकालेंगे कितने मंथ्स का
9 months का, and that will be rupees 27,000, and his actual profit share is 20,000 rupees. तो जो डिफरेंस है 7,000 रुपीज का, that will be borne by X, वो X bear करेगा। तो X का शेयर कितना हो जाएगा अब प्रॉफिट में? That will be, उसका शेयर है 60,000 का, तो उसमें से ये जो डेफिशिएंसी है 7,000 की, जो X को गारंटेड अमाउंट में कम है, ये माइनस करके X का शेयर हो जाएगा 53,000 रुपीज। ओके, नाउ ये हम एंट्रीज पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। X का कितना हुआ? 53,000। Y में कोई चेंज नहीं है क्योंकि उसने किसी को कोई गारंटी नहीं दी है, तो Y का कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 40,000, और Z का जो कैपिटल अमाउंट होगा दैट विल बी द गारंटेड अमाउंट, मीन्स 27,000। सॉरी, $1,38,000, इसको ये टोटल किया तो ये हो गया 1,20,000। ये हुआ 1,38,000। तो ये था जब किसी कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं कि उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक गिवन स्पेसिफाइड अमाउंट से कम नहीं होगा। तो हमने आज किया कि व्हाट इज गारंटी टू अ पार्टनर, और गारंटी अगर फर्म देती है तो कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, और अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है गारंटी तो कैसे कैलकुलेशन करनी है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गुडविल। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।